Good morning, everybody. I'm Dr. Mukesh Parikh. I'm live, and let us start today's lecture. Show me your presence so that we can start the class. We have been discussing for last 3 days, I think, Renaissance humanism, and today's lecture is again an extension that is Renaissance humanism. I can see Udawat, Bhavna Mali, Kundan Sharma, Kundan Kumar, sorry, Vaishali. Yes, everybody is there. Now I can start the class. But before I start the class, because today's class is not possible without looking at my blog, because I will be reading from the facts I have already uploaded there. So directly come to the blog, mukeshparikh.com, open that website, go to my blog, mukeshparikh.com, go to my blog mukeshparikh.com, or you can open the another website, englishcosmos.org. Swati, I can see Priyanka Singh is present. Very punctual students. We are in the film now, and wait for 1 or 2 days, and I will be engaging you in the test also. Daily there will be test of or not daily, I'm sorry, all either alternate days, or say simply go to Google, type there mukeshparikh.com, www.mukeshparikh.com. My website will open, and towards the right hand side you will see blog. Touch the side button of blog. Vaishali Udawat, have you got it? Or you can open the website this englishcosmos.org. English Cosmos, COSMOS.org. If you open this website, there are two numbers given there at the right hand side above, and 3 bars are there, 3 lines are there. You touch that, there will open so many things. Go there. Those who are joining us one by one, I say good morning to everybody today, and kindly go to my website, because I have uploaded certain facts there, and this class is going to be very, very meaningful for all of you. Prabha Jha, Pranab Vasak, those who have come to this Facebook page of mine should take some benefit, and because we have phone in our hand and we keep scrolling it this way, but consider it as a very sacred place, as a classroom where we are worshipping goddess Saraswati. Just think like that, and don't move away from this class, so that you can be benefited. Directly say yes if you have come to my blog on my website, because if you don't come to my website and my blog, I won't be able to teach you today. Kindly respond. Somewhere under the title, Some Facts of the English Renaissance. Under this title, yes, Swati's answer has come. Swati Parikh's answer has come, that she has done. She has come to that blog of mine. Kundan has come. Those who are serious students will only stay here. The rest of the people will just come and go. Deepali saying my website, yes. Satyendra saying that's great. Purti, you are not regular in the class. You just come and go according to your wish. So, but still, I'll be asking you to kindly go to my website. Teresa is there. Teresa, have you opened that website of mine? And first of all, kindly share this class. Share this page, share this post to the other pages and other groups also. If you share, then I will start the class. Good morning, Teresa. I read your post, and that's good. You are such a gem, actually. You can go very high in your life.
Okay, now don't consider that I wasted this much time of yours, because this is another medium. This is not an offline class. Should I start? Okay, now I'll be talking about, as you know, that in some past classes, uh, we have talked about how Renaissance came, how humanism came, what is the definition of humanism, how in Florence, how in Italy, how in Constantinople, which we call Istanbul today, the attacks of the Turks, it spread the knowledge. And I talked about so many different things. But today's lecture is purely based on certain aspects, which you can see there. I have uploaded certain facts on this blog today. Uh, Narottam Singh ji, come to my blog immediately so that we can start reading. Manav Bhardwaj and serving the muses of knowledge. Thank you very much, Mr. Manav Bhardwaj. You are a brother. Okay. What I was talking about, that in this lecture we are going to talk about mm, English Renaissance. How English Renaissance can be talked about. Can we really say that Renaissance came to England? Because there are certain writers, and like C.S. Lewis, I remember I read somewhere that he said that English Renaissance did not happen at all. Now you will be surprised that why I'm saying this. On one hand, I'm saying that English Renaissance we are studying, and on the other hand, I say that English Renaissance, there are critics, who say that English Renaissance did not occur, or there has never been a phenomenon which is called English Renaissance. I think the reason behind that is that almost all the writers, whom we study today, they either translated, for example, when we say that Chaucer, he had an input of Renaissance in him. He was a modernist of sorts. He translated, the works of French writers. He, was inspired by Mr. Hassan. Go to my blog so that we can study. Chaucer, he translated the works of the French writers, or say he was inspired by Boccaccio. Clear? So, simply one example. But if we, today you will come to know that almost all the writers, whether they are, under the patronage of the kings and queens in England, they were translating. They were too much busy in the rigorous translation and the translation of the Greek and Latin writers, Greek and say Roman writers. When they translated, the ideas were second-handedly introduced to England. So we cannot say that there was a single, original English thinker. All the English writers are, say, whether we talk about Bacon, whether we talk about, say, Caxton, whether we talk about Spencer, because I think tomorrow or day after tomorrow is Sunday, we'll have no class. But in the coming classes, I'll be reading. Biswajit ji, kindly come to my blog on my website mukeshparik.com, because I will start reading from that. I have uploaded certain facts there. So what I was talking about, that originally English thinkers have second-hand ideas. Okay. And so we have this view also. So in your exam, that they give you certain questions where they ask you to have reasoning ability of yours. Sometimes they give you questions like, this is the perfect reasoning of this particular point. So that in those kind of questions you can solve if you have your ideas very much clear. So that is why. And yesterday I was talking about proto Renaissance. Because it happened that when officially in 1453 and say 1473, when the attack on Constantinople occurred, before that also there were certain writers who were writing. There were certain things, क्योंकि क्या होता है, actually what happens that when we read something, after 500 years or say 1,000 years, or say we read some
with certain aim, with certain politics in the mind. Okay, so कई बार हमें लगता है कि जैसे हम रोमांटिसिज्म की बात करते हैं, बट romantic writers did not know that they are romantic. In the same way, the writers, when they were writing, they were translating, they were countries, they did not know that they are Renaissance writers or they are humanists. We call them humanists because they were doing their task, and now we are under the condition that we are the receivers, we are the subjects who are studying them, and they are the objects, and then we are deciding certain nomenclature, certain names, like he's a Renaissance, he's an early Renaissance writer, he's a late Renaissance writer, he's a high Renaissance writer. Okay, so I don't claim that in today's class I will be able to cover all the points, because okay, let us start. So the first point is the tragedy of Mariam, the fair queen of Jewry. आपको ये क्वेश्चन एक तैयार करना है. अच्छा, एक तो बिल्कुल भी यू आर नॉट गोइंग टू बी अंडर इंडोलेंस, यू डोंट ट्राई टू बी लेजी इन माय क्लास एंड बीइंग माय स्टूडेंट्स. इन सभी पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे. उसको उतारने से बेनिफिट क्या होगा कि आपको सीरियसली इसमें से आपको 100% क्वेश्चंस दिख जाएंगे एग्जाम के अंदर. ओके, तो जो अगर हम कहें कि ट्रेजेडीज शेक्सपियर ने लिखी, मार्लो ने लिखी, या उससे पहले गॉर्बोडॉक वगैरह की ट्रेजेडीज हैं, तो कौन सी ऐसी औरत थी एलिजाबेथन एज में इन द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ थिएटर एंड ड्रामास हु रोट अ ट्रेजेडी? तो पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा. सब लोग यस बोलिए ताकि मुझे लगे कि हाँ, नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ क्लास. द ट्रेजेडी ऑफ मैरियम, ये आपको नाम याद रखना है. द फेयर क्वीन ऑफ ज्यूरी. Okay, it's a closet drama. Closet drama I have already explained in the other classes, but for the sake of your benefit, let me explain that closet drama का मतलब होता है a drama which is written for the purpose of be read in closet का मतलब होता है कमरा. कमरे में बैठ के केवल पढ़ने के लिए जो ड्रामा लिखा जाता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है closet drama, written by Elizabeth Tanfield Carey. तो ये 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं. पहला क्वेश्चन, द ट्रेजेडी ऑफ मैरियम, ये क्या है? इसका सब टाइटल पूछ सकते हैं, द फेयर क्वीन ऑफ ज्यूरी. ज्यूरी का मतलब जूइश से है यहाँ पे. और द फर्स्ट, इसमें लिखा हुआ इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1613 एंड हुमा खान, यू आर गिविंग द आंसर, वाज द फर्स्ट ओरिजिनल प्ले इन इंग्लिश नोन टू हैव बीन रिटन बाय अ वुमन. So this is your first point, that English Renaissance कैसे आया? Because Renaissance का मतलब है rebirth of knowledge, rebirth of learning, that you are creating an atmosphere around you, by publishing books. और मैं एक बात हमेशा बताते because मुझे बहुत सारी बातें शेयर करने का मन करता है being a teacher, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्यों पूछेंगे. क्योंकि एलिजाबेथन एज से, विक्टोरियन एज से जिन बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, मैं उनसे बहुत जल्दी विक्टोरियन एज की PDF शेयर करने वाला हूं. और तब मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आई हैव ऑलरेडी पुट अ सेक्शन ऑफ द वुमेन राइटर्स ऑफ एलिजाबेथन एज, जिसमें से हमें 2 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो लोग. ओके, सो इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मैं रिपीट कर रहा हूं, द ट्रेजेडी ऑफ मैरियम, द फेरी क्वीन. इस वीडियो को जो बच्चे बाद में यूट्यूब पे देखेंगे वो बिल्कुल इसको क्लास समझ करके, और जैसे जैसे मैं कह रहा हूं मेरी वेबसाइट पे जा करके, ब्लॉग पे आ करके, और एक एक चीज रीड करें तो ऐसे लगेगा जैसे एकलव्य पढ़ रहा है द्रोणाचार्य से. Okay, so let me come to the second point now. This is again a very important question from my readings, of different books of history of English literature. आप क्या नाम पढ़ रहे हैं? पढ़ के बताइए क्या है सेकंड पॉइंट में. इट इज एथेलबर्ट. अभी एथेलबर्ट नाम क्यों फेमस है, इस पे क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? क्या है कि जब क्रिश्चियनिटी आई इंग्लैंड में, इन द मिड ऑफ द 6th century, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 6th century, क्रिश्चियनिटी जब इंग्लैंड में एंटर करती है, और कैंट नाम की जगह पर क्रिश्चियनिटी एंटर करती है, फिर वहां पे कैंटरबरी वो एक आपको पता है कैथेड्रल बनाते हैं. कैथेड्रल का मतलब भी मैंने बता रखा है, मतलब एक ओरिजिनल सिंसियर स्टूडेंट एक एक वर्ड का मीनिंग जानता है. जैसे मैंने कैसे इंग्लिश को सीखा है, इंग्लिश सीखने का मतलब है दिस इज अ सेकंड लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफ अस, अ फॉरेन लैंग्वेज. बट इफ यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट, आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए हर वर्ड का मीनिंग. का मतलब क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ चर्च, हाउ इट इज डिफरेंट, चर्च इज डिफरेंट फ्रॉम सिमेट्री. ये सारी बातें जब हमें पता, तो धीरे धीरे हमें एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आने लगता है. मीनिंग लाइज इन द वर्ड्स, ओके, बट वो वर्ड के साथ में जो कल्चरल कॉनोटेशंस होते हैं वो हमें क्लियर होना चाहिए. तो सारे के सारे राजक जो है वो एक पैगन कंट्री था. पैगन का मतलब होता है बिल्कुल ग्रीक लोगों की तरह रोमन, क्योंकि वो ब्रिटानिया से एस्टैब्लिश्ड थे, वो रोमन लोगों से एस्टैब्लिश्ड ये कबीले थे.
कैबलाइट्स जिनको बोलते हैं, और इन लोगों के पास में क्रिश्चियनिटी नहीं थी, मतलब ये नेचर की वर्शिप किया करते थे, दे यूज्ड टू वर्शिप नेचर। ओके, तो कौन सा राजा था जिसको पहली बार क्रिश्चियन बनाया गया? अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट हाउ यू कैन कन्वर्ट अ किंग इनटू क्रिश्चियनिटी। सोनल सिंह, गो टू माय वेबसाइट mukeshparik.com एंड स्पेलिंग क्यों बोलूं हुमा खान, कम टू माय वेबसाइट mukeshparik.com एंड उस पे मेरे ब्लॉग पे आइए, come to my blog and read with me, because we are reading here. I'm not going to speak spellings today. Those who are coming just for the sake of visiting us, this is not a class for them. This is class for the real students. Okay? अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था बताइए कि सारे राजा कैसे पैगन थे अचानक से? एक्चुअल में इसकी स्टोरी बिहाइंड, एक्चुअली आए थे, दे स्टार्टेड promising the kings के particular war में, because England was again divided into different clans and areas, and they used to fight with each other. तो उसने कहा कि हमारे जो क्राइस्ट है वो आपको ये वाला युद्ध जितवा देंगे, और कोइंसिडेंटली वो युद्ध जीत जाता, लेकिन एक शर्त है कि मैं आपको अपने गॉड का आशीर्वाद तभी दिलवाऊंगा जब आप ये प्रॉमिस करें कि आप युद्ध जीतने के बाद में हमारे क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करके हु वाज द फर्स्ट किंग। और क्या जरूरी है कि राजा अगर क्रिश्चियन बन गया तो उसके बेटे भी क्रिश्चियन बन गए, है ना? तो किंग अल्फ्रेड क्यों फेमस है? वाइकिंग अटैक्स क्या है? क्योंकि पूरे इंग्लैंड में वाइकिंग अटैक्स हो रखे थे, तो ये तो बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए जब हम एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश की बातें करते हैं। तो ये वाले लेक्चर्स जल्दी खत्म होने वाले नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारा बेस क्लियर होगा। सो हु वॉज द फर्स्ट किंग हु वॉज द क्रिश्चियन वन? तो ये आंसर आपको सेकेंड वाले पॉइंट में मैंने दिया है, दैट एथेलबर्ट वॉज द फर्स्ट इंग्लिश किंग टू बी कन्वर्टेड टू Christianity, which proved to be a crucial event in the development of English national identity. So they can mold the question in any way. In 597 time, अभी एक और क्वेश्चन बन रहा है, that Christianity 526, but they started converting the kings, because if you Harbhajan Singh ji, good morning, go to my website and open my blog there, so that you can read from there and you can enjoy the real class. Okay, so Augustine का नाम आपको बार बार पूछा जाएगा, that Roman monk, he was a Roman monk. Roman monk का मतलब क्या होता है? क्योंकि आपको पता है रोम के अंदर जो वैटिकन सिटी है वहां से क्रिश्चियनिटी संचालित होती है। सो वहां से उनको इंग्लैंड भेजा गया था एक मिशन से, मिशन की वजह से मिशनरीज कहा जाता है। मिशनरीज क्या होते हैं? जैसे अगर आपको याद हो, हमारे यहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ के अंदर क्या होता था? वो घोड़ा छोड़ते थे। वो घोड़ा जिस जिस एरिया से गुजरेगा, वो अगर या तो विरोध करो, घोड़े को पकड़ लो और युद्ध करो। इफ यू आर फाइटिंग एंड इफ यू विन, तो ये राज्य तुम्हारा हो गया, अदरवाइज दिस विल बी एथेल किंग। इट्स नॉट एथेल किंग हुमा। तो अश्वमेघ यज्ञ जो था वो भी एक तरह का एक टाइप का कॉलोनियलिज्म आप मान लीजिए। मिशनरीज होते थे वो लोग। मिशनरी का मतलब केवल रिलीजन से रिलेट हम करेंगे अभी। ओके, सो ऑगस्टाइन अराइव्ड इन कैंट। ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे पहले क्रिश्चियनिटी का सेंटर इंग्लैंड में क्या है? एज अ लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ मिशनरीज सेंट बाय पोप जॉर्ज द ग्रेगरी द ग्रेट। सॉरी, ये भी एक क्वेश्चन बना है, ये आया हुआ एग्जाम में। ये आप अगर ये क्लासेस अटेंड करते हैं तो यू कैन क्लियर the toughest exam in English literature. Okay, the Gregory the Great. तो इस एक सेकेंड पॉइंट में आपको मैंने कम से कम 4 या 5 पॉइंट दिए। I have supplied with 4 or 5 points through which you can solve the questions. अब थर्ड पॉइंट पे आइए। What is the third point? It is Wycliffe. We pronounce this as Wycliffe. From the 16th century, the Lollard movement. अपनी कॉपी में लिखिए, Lollard का मतलब होता है followers of Wycliffe. हम बात कि इंग्लैंड में रेनेसा कैसे आया, तो ये सेकंड पॉइंट मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया कि ये रेनेसा से रिलेटेड तो नहीं है। सेकंड वाला पॉइंट, एथेलबर्ट इज द फर्स्ट इंग्लिश किंग जो क्रिश्चियनिटी जिन्होंने अडॉप्ट किया, बट समवेयर इंग्लिश का मतलब कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी से है, और क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे पैगनिज्म से जब अलग होती है, ग्रीक कल्चर को ट्रांसलेशन से अडॉप्ट करती है, तो धीरे धीरे उनकी नॉलेज बढ़ती है, एंड दैट ब्रिंग्स Reformation, that brings Renaissance, revival of learning. I think that's why I put you points. तो विक्लिफ के फॉलोवर्स को लॉलर्ड्स कहते हैं। लॉलर्ड का मतलब होता है लो मैन। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है।
and he was the precursor का मतलब होता है someone who starts something, precursor to the Protestant Reformation. मैं Protestant already बता चुका हूँ आप लोगों को. If I ask you like what is a Protestant or what is a Catholic, how a Catholic is different from Protestantism, तो ये सब चीजें भी आने वाले समय में और दोबारा डिस्कस होंगी, because in the coming classes I'll be discussing the translation of Bible and the gory history of England, the history of England where the kings showed intolerance. और वो सब चीजें जब हम डिस्कस करेंगे तो वी विल कम टू नो दैट why authorized version which was published in the reign of James I is considered to be the most important document of Renaissance, English Renaissance. तो कंफ्यूज मत होइए, मेरी बात के एक एक शब्द को पकड़ते जाइए. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, विक्लिफ के फॉलोअर्स की बात चल रही है. वो प्रिकर्सर माना जाता है. प्रिकर्सर का मतलब हार्बिंजर, वन हु ब्रिंग्स द स्टार्टिंग कोई चीज. विक्लिफ वाज अकॉर्डिंगली कैरेक्टराइज्ड एज द इवनिंग स्टार ऑफ स्कॉलास्टिसिज्म. इसको बोला जा रहा है स्कॉलास्टिसिज्म का. वाई? बिकॉज उससे पहले स्कॉलास्टिसिज्म आ चुका है, उससे पहले ऑलरेडी बाइबल के कुछ ट्रांसलेशन हो चुके थे. एंड एज अ मॉर्निंग स्टार ऑफ द इंग्लिश रिफॉर्मेशन. Okay, and eagerly with, that's great. Okay, so morning star of the English Reformation and evening star of scholasticism. Again, दो questions. Okay, now let us come to the fourth point. In the fourth point, I have already mentioned one thing. बताइए fourth point में क्या लिखा हुआ है, लिख के टाइप करके बताइए, so that I नीलाल जी, if you are really you have come to attend my class, then go to my website mukeshparik.com. वहां पे जाके मेरा ब्लॉग दिखेगा, वहां पे उस ब्लॉग को टच करेंगे. आज की एंट्री में कुछ पॉइंट्स हैं 22 के आसपास, हम उनको स्टडी कर रहे हैं, सो दैट हमारा टाइम कम वेस्ट हो, टू द पॉइंट बात हो सके और उसको घर पे जाकर के रिवाइज किया जा सके. ये मैंने इसलिए किया है ताकि आपका टाइम बहुत तरीके से मैनेज कर सकूं और मैं आपको ज्यादा पढ़ा सकूं. ओके, सो इट इज फोर्थ पॉइंट. देखिए कई बार क्या होता है, टीचर कुछ टर्म्स बोलता है और स्टूडेंट को ऐसा लगता है ऑनलाइन क्लास में पर्टिकुलरली कि ऐसे एक टर्म होगी. सो इट्स नॉट अ टर्म एक्चुअली. अर्ली रेनेसां एक पीरियड है और इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. अर्ली रेनेसां पीरियड फ्रॉम 1400 टू 1479. अर्ली रेनेसां, उस अर्ली रेनेसां में ही प्रोटो रेनेसां भी आ जाता है. प्रोटो रेनेसां का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि रेनेसां का जो ऑफिशियल डेट राइटर्स लिखते हैं उससे भी पहले क्या है का पीरियड. सो वेयर आर्टिस्ट ट्राइड टू एम्युलेट द क्लासिकल आर्टिस्ट्स ऑफ एंशिएंट रोम एंड ग्रीस. तो अर्ली रेनेसां क्या होता है, जो आर्टिस्ट हैं वो अपने क्लासिकल राइटर्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं. एम्युलेट करने का मतलब कॉपी करना, कॉपी करके परफेक्शन की तरफ आना. ये डेट आपको याद रखनी है, 1400 टू 1479. फिर आगे एक नया टर्म मैंने फ्रेस्को, आपकी क्लास में फ्रेस्को. अब ये वर्ड आपको पता होना चाहिए क्योंकि व्हेन आई टॉक अबाउट माइकल एंजेलो, व्हेन आई टॉक अबाउट राफेल, व्हेन आई टॉक अबाउट हमारा दा विंची, जब हम स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी मच कंफ्यूज्ड दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज दिस फ्रेस्को एंड ऑल. हंस राम यादव, आप अगर मेरी क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट mukeshparik.com और वहां पे एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग पे आ जाइए. ब्लॉग खोलते ही आपको एक आप पे पोस्ट मिलेगी, उसको हम पढ़ रहे हैं, उसमें से हम पॉइंट्स. फ्रेस्को देखिए क्या होता है, अ टेक्निक वॉल्स यूजिंग वेट प्लास्टर. प्लास्टर को ऐसे दीवार पे मतलब लगा देते हैं सीमेंट की तरह, एंड व्हेन द प्लास्टर ड्राइड तो उसके अंदर कलर को टच किया जाता है और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस मान लीजिए वो उसको सोखता है, तो एक अलग तरह का टेक्सचर आता है. ओके, सो ये जो, हाँ, तो उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेस्को. याद रहेगा, तो दे कैन आस्क लाइक व्हाट इज अ फ्रेस्को. नेक्स्ट 6th पॉइंट देखिए क्या नाम आ रहा है, लिख के बताइए 6th पॉइंट में क्या नाम आ रहा है, टॉर्क्वाटो टासो. अभी आपने पहले कभी नहीं सुना होगा. क्यों इंपॉर्टेंट है? जब मैं आपको स्पेंसर का फेरी क्वीन के लिए डेडिकेटरी लेटर पढ़ाऊंगा जो वॉल्टर रेले को लिखा गया था, हम उसकी एक एक लाइन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम कॉस्मोस क्यों फेमस है. कॉस्मोस अभी इंडिया में फेमस नहीं हुआ है, ये लॉकडाउन की वजह से आप लोग ही मुझे फेमस करोगे जब आपको पता चलेगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, मैं कैसे एक स्टूडेंट के माइंड को ओपन करने की पूरी कोशिश करता हूं. तो जिनको ऑनलाइन एडमिशन लेना है वो बिल्कुल डिले ना करें. अगस्त के लिए एडमिशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, काफी एडमिशंस हो रहे हैं. एडमिशन लीजिए ताकि आपका नेट और जेआरएफ पक्का हो जाए मेरी क्लास से. ओके, टॉर्क्वाटो टासो का नाम हम पढ़ेंगे पहली बार.
was the last major poet of the Italian Renaissance. अब मैं आपको इटालियन रेनेसा नहीं पढ़ा सकता. अगर मैं इटालियन रेनेसा पढ़ाने लग गया तो अगेन देयर इज अ होस्ट ऑफ और अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ राइटर्स. उस लिस्ट को तो हम मतलब जब स्टडी करेंगे तो हमारा जो दिमाग है वो और ओपन होगा. अच्छा, मुझे एक पॉइंट आपसे शेयर करना है. जब हम लोग ब्राउनिंग पढ़ते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कोई भी ब्राउनिंग की पोएम उठा के देखते हैं तो ही इज टॉकिंग अबाउट द रेनेसा राइटर्स, ओके, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट इटालियन रेनेसा. सो आई एम नॉट सेइंग दैट इटालियन रेनेसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि हमारे लिए इंग्लिश लिटरेचर में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, दैट्स व्हाई वी आर पेइंग अटेंशन टू इंग्लिश रेनेसा. सो देखिए, टार्क्वाटो टासो क्यों फेमस है? द लास्ट मेजर पोइट ऑफ द इटालियन रेनेसा. हिज आर्टिस्टिक स्टाइल कंबाइंस intense emotions with a serious moral tone. So there is a combination, an amalgamation of two things. कि एक writer जो on one point is morally very serious and on one point he's very emotional. तो दो चीजों को mix कर दिया. Okay, in his most famous work, the epic, उसका नाम क्या है? जेरूसलम डिलीवर्ड. आपको मालूम होना चाहिए कि फेरी क्वीन जो स्पेंसर ने लिखी है, उस फेरी क्वीन का जो सोर्स है वो ये जेरूसलम डिलीवर्ड है. इसीलिए इस पे क्वेश्चन बनता है. ओके, एंड व्हेन दिस वाज ट्रांसलेटेड ही एक्सप्लोर्ड द थीम्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म. और आपको मालूम है कि नेट में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि रेनेसा जो कोर्टली पोएट फेरी क्वीन को लेते हैं. लेट अस टेक फेरी क्वीन. तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फेरी क्वीन? उसमें हीरोइज्म भी है और लव भी है, क्योंकि उसमें जिस तरह से एक एडवेंचर के लिए निकलते हैं, बट दे आर सीकिंग लव इन देयर लाइफ, अलॉन्ग विद एडवेंचर. तो ये दो एक रेनेसा के एलिमेंट है, एलिजाबेथन एलिमेंट है, शिवलरी के पहला स्थान दिया जाता है. जब हम चौसर पढ़ते हैं तो कैंटरबरी टेल्स में सबसे बोलने के लिए इनवाइट किया जाता है, वो कौन है? नाइट, बिकॉज शिवलरी. आज भी हम एकदम से नतमस्तक हो जाते हैं किसके आगे? सैनिकों के आगे, बिकॉज समवेयर दे सेव अस, दे प्रोटेक्ट अस. So that is why Tasso's name is important. Delivered में भी जेरूसलम का मतलब है, आपको पता है, इट इज अ क्रिश्चियन प्लेस जिसमें क्राइस्ट से रिलेटेड है ये, है ना. और डिलीवर्ड का मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं क्रूसेड्स का रेफरेंस आ रहा है कि जेरूसलम को आजाद करा लिया. डिलीवर्ड का मतलब आजाद करा लेना. तो आगे पढ़ रहा हूं, देखिए, साथ साथ पढ़ते जाइए ताकि आपको लगे कि हम ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं आज. जो लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, मैं बार बार बोलूंगा, तंग मत हो जाना, कि जैसे अभी somebody has joined us, उनको मेरी वेबसाइट पे आना चाहिए mukeshparik.com या englishcosmos.org, और वहां पे मेरा ब्लॉग दिखेगा. ब्लॉग पे आज की एंट्री जो हमने कर रखी है पोस्ट, उसको हम पढ़ रहे हैं. ओके, अच्छा, लिखा हुआ है कि प्रोवाइडिंग अ रिच एंड कॉम्प्लेक्स अकाउंट ऑफ द टेंशन बिटवीन द टू. व्हाट इज द टेंशन? एक तो हीरोइज्म और एक लव, दोनों के बीच में जो टेंशन है उसको बताया टासो ने अपने जेरूसलम डिलीवर्ड में. दिस वर्क मेड टार्को फेमस एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ हिज डे, नॉट इन इटली बट इन इंग्लैंड ऑल्सो. अब आ जाइए छठे पॉइंट पे. आइए, बताइए क्या लिखा हुआ है छठे पॉइंट पे. सिक्स पॉइंट क्या है बताइए? फ्रांसिस्को पेट्रार्खा, कॉमनली एंग्लिसाइज्ड एज पेट्रार्क. अब पेट्रार्क के बारे में हम कल बात कर ही चुके हैं और जिनका एडमिशन हो चुका है. अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी कि जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, जो लोग आज मुझसे पढ़ रहे हैं इस वक्त यहाँ, क्या उन्होंने प्रेज ऑफ फॉली की जो वेबसाइट, जो मैंने आपको पूरी डिटेल भेजी है पीडीएफ के थ्रू, उसको पढ़ लिया? अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़िए, और आई एम गोइंग टू सेंड यू अनदर पीडीएफ वेरी सून. आज ही शायद भेज दूंगा. ठीक है, तो पेट्रार्क के बारे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. पेट्रार्क की सोनेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो सेवंथ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? पेट्रार्क है इसका पूरा नाम. आप तो ये ऐसे याद रखिए, आपको पेट्रार्क पूछा जाएगा. एक इटालियन स्कॉलर थे, पोएट ड्यूरिंग द अर्ली इटालियन रेनेसा, हु वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमनिस्ट्स. उनको हम अर्लीस्ट ह्यूमनिस्ट की कैटेगरी में डालते हैं, प्रोटो रेनेसा की कैटेगरी में डालते हैं. पेट्रार्क्स रीडिस्कवरी ऑफ सिसरोज लेटर्स is often credited with initiating the 14th century Italian Renaissance. एक क्वेश्चन आपको बनाना है, अपनी कॉपी में अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको लिख करके, कि Cicero's letters. This is again something very important. I don't have that much time, because otherwise I will digress. इसीलिए इस पे हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आप लिख लीजिए अलग से अपनी कॉपी में. Cicero's letters are considered to be the most important point, and when Petrarch first of all rediscovered them, it is considered to be the starting of Renaissance, Italian Renaissance. Okay,
एंड द फाउंडिंग ऑफ द रेनेसा ह्यूमनिज्म। तो बार बार हम ये टर्म्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश रेनेसा, इटालियन रेनेसा, अर्ली रेनेसा, लेट रेनेसा, हाई रेनेसा, रेनेसा ह्यूमनिज्म अपने आप में एक ह्यूमनिज्म है, एक पोस्ट ह्यूमनिज्म भी है। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टर्म्स, यू आर गोइंग टू बी प्रोफेसर्स, तो हमें सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे पेट्रार्की। तो वो आपको मालूम है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ रेनेसा ह्यूमनिज्म। ओके, आप आगे आइए, क्या लिखा हुआ है बताइए। जियोवानी बोकाशियो 8 नंबर पे पढ़ते जाइए। बोकाशियो का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है 8 नंबर पे। वॉज एन इटालियन राइटर, पोएट, कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ पेट्रार्क and an important Renaissance humanist. Boccaccio wrote a number of notable works, including the Decameron and on famous women. अब ये क्यों फेमस है? चौसर ने जो अपनी सीक्वेंस उठाया था कैंटरबरी टेल्स के लिए, कि एक आदमी कहानी कह रहा है, फिर उसके जवाब में दूसरा आदमी कहानी कह रहा है। तो आपको पता है कि प्लेग के दौरान जो बोकाशियो ने लिखा है डेकेमरॉन, उसमें वो 10 लोग हैं, क्वारंटाइन हो जाते हैं एक जगह पे जाकर के, और अपना वो जो आइसोलेशन पीरियड बिताने के लिए दे आर टेलिंग स्टोरीज टू ईच अदर। तो उससे डेकेमरॉन बना है, ठीक है। ऐसे करके आपको बोकाशियो का नाम भी इंपॉर्टेंट पता चला। अगले 9th नंबर पे आइए, लिख के बताइए मुझे लग रहा है वीडियो स्टॉप हो गया है। टेल मी, आई शुड सी योर थम्स, यू कीप शेयरिंग। जो भी मुझे देख रहे हैं, आपको मालूम है कि आपको शेयर करना चाहिए, तो ये वीडियो शेयर करते रहिए प्लीज, लाइक करते रहिए, यस बोलते रहिए, मुझे पता चलना चाहिए लाइव। अदरवाइज लाइव का मतलब ही क्या हुआ? हम अपने अपने जगह पर बैठ के तो लाइव है ना, बट वी शुड ऑल्सो शो दैट वी आर लाइव, एंड शेयरिंग इज केयरिंग। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आप वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे मेरा गूगल पे एक पेज है, आप वहां पे जाके और हमारे जो गूगल रिव्यूज होते हैं उनको प्लीज रिव्यू कीजिए, 5 स्टार दीजिए, और वहां पे एक अच्छा सा एक ऐसा पॉजिटिव कमेंट लिखिए जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। क्योंकि आपको मालूम है ना कि टीचर्स को डीमोटिवेट करने वाले लोग ज्यादा होते हैं और मोटिवेट करने वाले लोग कम होते हैं। ये तो हम सेल्फ मोटिवेटेड है कि हम इतना सारा मतलब पढ़ा देते हैं, काम करते रहते हैं। तो आप प्लीज वहां जाइए, आज आपको करना है ये काम। सभी मेरे गूगल पेज पे जाइए, जहां पे आप वेबसाइट सर्च करते हैं वहां पे आपको गूगल पे पेज दिखेगा, वहां पे एक रिव्यू करेंगे, फिर 5 स्टार का आएगा। 5 स्टार देने के बाद 5वें स्टार को डायरेक्ट टच कीजिए, फिर वहां पे आप एक अच्छा सा रिव्यू लिखिए मेरे लिए, ठीक है। ओके, चलिए। Ludovico Ariosto was an Italian poet. 9th नंबर पे क्या लिखा हुआ है? Ariosto. He is best known as the author of the romance epic Orlando Furioso. आपको याद रखना है, Orlando Furioso is again the important book जिसके ऊपर स्पेंसर ने 2 बुक्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने इसको बेस किया है, अपने फेरी क्वीन को। उसमें एक नाम ये आता है ऑर्लैंडो फ्यूरियोसो। ओके, ऑर्लैंडो फ्यूरियोसो द पोएम कंटिन्यूएशन ऑफ मेटेओ मैरियो। ये एक नाम आ रहा है जिसको मैं बोलना पसंद नहीं करूंगा, जरूरी नहीं है हमारे लिए, बस आपको इतना याद रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज कि ही वाज एन इटालियन पोएट। उसका नाम क्या है? लुडोविको एरियोस्टो। ओके, एंड ही was the author of Orlando Furioso, ठीक है। They can also ask us the meaning of Furioso का मतलब होता है पागल, Orlando the Mad, ठीक है। अब आ जाइए 10th पॉइंट पे, बताइए क्या। जो लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं मुझे, उनको मैं बार बार कहूंगा, मेरी वेबसाइट पे आइए mukeshparik.com या englishcosmos.org, वहां पे मेरा ब्लॉग है। उस ब्लॉग पे आकर के आज की पोस्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के नाम से, एलिजाबेथ एज के ऊपर, रेनेसा ह्यूमनिज्म पे, उसमें हम 10th पॉइंट पढ़ रहे हैं इस वक्त। बताइए क्या लिखा हुआ है, आप लिख के बताइए क्या लिखा हुआ है, लिखिए ताकि आपको नाम याद रहेगा इसी बहाने। अदरवाइज व्हाट एक्सक्यूज इज अ टीचर इज टीचिंग ऑनलाइन क्लास कैन टेक सो दैट ही कैन ड्रिल डाउन द फैक्ट्स डीप डाउन इन द स्टूडेंट्स माइंड। 10th पॉइंट के राइटर का नाम लिख के मुझे टाइप करके बताइए, सो दैट आई कैन सी यू आर रियली रीडिंग। व्हाट इज द नेम? रिचर्ड मुलकास्टर, दैट्स ग्रेट। रिचर्ड मुलकास्टर, बोल के देखिए, बोलने से आपको याद रहेगा। अब ये मुलकास्टर नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आप जब पुराने पेपर उठा के देखोगे तो यू विल फाइंड इन द ऑप्शंस दिस नेम। ओके, सो ही इज नोन, रिचर्ड मुलकास्टर इज नोन बेस्ट फॉर हिज हेडमास्टरशिप। अच्छा देखिए, आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश रेनेसा। तो इंग्लिश रेनेसा में
जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो बार बार इटालियन वर्क्स, इधर यू आर ट्रांसलेटिंग द इटालियन वर्क्स और यू आर ट्रांसलेटिंग द लैटिन वर्क्स, तो आपकी खुद की इंग्लिश का क्या हुआ? एक तो हम मानते हैं कि द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इज जो है वो कौन है? चॉसर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन उनकी इंग्लिश में आपने नोटिस किया होगा एक ऑर्थोग्राफिक प्रॉब्लम है कि वी कैन नॉट रीड चॉसर with fluency, and we need an expert with us if we are reading Chaucer. तो रिचर्ड मुलकास्टर क्यों फेमस है कि ये जो राइटर हैं, मैंने अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक में से इनका एक पिक शेयर किया है यहाँ पे, एक उसमें से आपको कुछ पढ़ना है अभी। मुलकास्टर इसलिए फेमस है बच्चों क्योंकि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ, उसकी ऑर्थोग्राफी की तरफ एक रुझान पैदा किया। जैसे मान लीजिए अभी आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड, मैं बिल्कुल भी फिल्मों को पसंद नहीं करता हूं मैं ज़्यादा, क्योंकि हम टीचर्स हैं, पढ़ने में ज़्यादा टाइम देते हैं, वी डोंट वॉच मूवीज़। मूवीज़ अगर देखते भी हैं तो आर्ट मूवीज़ देखते हैं। जैसे मैं आपको एक आर्ट मूवी देखने के लिए कहूँ, अगर आपको आज आत्महत्या करनी है, क्योंकि आपकी जनरेशन में अगर आर्ट मूवी देख लो मेरे मेरे टेस्ट की, तो आप लोग सुसाइड करके मर जाओ। एक मूवी है परिणति। परिणति एक पुरानी फिल्म है, अगर आप उसको देखोगे, ये विजयदान देथा की स्टोरी पर बेस्ड है, एंड दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। अगर मैं उस मूवी को देखता हूं, आपको ताज्जुब होगा मैं 3 बार देख चुका हूं अपनी पूरी लाइफ में। तो उस तरह की आर्ट मूवीज हम देखना पसंद क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको पता है क्या हमारे स्कूल कॉलेजेस में कहीं पर भी ऐसी कोई ट्रेनिंग हमें मिल रही है, कोई ऐसी टेक्स्ट बुक, क्या हमें पाथेर पांचाली दिखाई जा रही है स्कूल में, जिसको पहला ऑस्कर, ऐसा कुछ सिखाया जा रहा है जिससे एक नेशनल कैरेक्टर बिल्ड हो हमारा, है ना? केवल जनगण मन गाने से तो हमारा नेशनल कैरेक्टर बिल्डअप नहीं होता ना। जनगण मन का भी एक पूरा अर्थ अगर हम पूछ लें, अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, तो भारत भाग्य विधाता का एग्जैक्ट मीनिंग उस पर कमेंट करने के लिए कह दें इंटरव्यू में, तो मतलब प्रॉब्लम आ जाए स्टूडेंट के लिए। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिचर्ड मुलकास्टर, इन्होंने एक कुछ इस तरह की चीजें खोजी। एक साइलेंट लेटर कौन से होते हैं, कैसे इंग्लिश लिखनी चाहिए, इनके इतने एफर्ट्स रहे कि आज जो मॉडर्न इंग्लिश हम देखते हैं विद सर्टेन ऑर्थोग्राफी एंड द चेंजेस इन द स्पेलिंग, वो सारा कंट्रीब्यूशन, तो वो बताइए इंग्लिश रहने सा हुआ कि नहीं? तो इस तरह से इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय पेट्रार्क के, बजाय टॉमस मूर के, बजाय और किसी राइटर के, टासो के, और इन सब राइटर्स के, मुलकास्टर का नाम ज्यादा फेमस है। अब मैं पढ़ रहा हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है, लेक्सिकोग्राफी, 3rd लाइन पे पढ़िए। 2nd लाइन में लिखा है कि फॉर हिज पेडागॉजिक राइटिंग, इन्होंने पेडागॉजी का मतलब होता है हाउ टू टीच, ओके। ही इज ऑफन रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। लेक्सिकोग्राफी, हाउ टू राइट अ डिक्शनरी, और आपको मैं आज डिक्शनरी के बारे में भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। यस्टरडे ऑल्सो आई गेव यू अ टास्क एज अ होमवर्क, दैट इज कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पब्लिकेशन कहाँ से हो रहा है, उसका लेक्सिकोग्राफर कौन है। If you are really become the professor of English in a reputed university or college of India, आपको बहुत कुछ रेगुलर सारे दिन पढ़ते रहना चाहिए। इनकी 2 बुक्स के नाम मैंने लिखे हैं, देखिए क्या है। पहली बुक का नाम है पोजीशंस, 1581 में पब्लिश हुई, एंड एलिमेंट्रीज दैट इज 1582 में। बुक से 2 ट्रीटिस, यहाँ पे लिखा हुआ ट्रीटिसेस। ट्रीटिस का मतलब होता है हिंदी में क्या बोलेंगे, एक ग्रंथ मान लीजिए आप, ओके। इट्स अ काइंड ऑफ वर्क। Elementaries ends with a list of 8,000 hard words, okay, and इनके जो hard works हैं, excuse me बच्चों, hard words, 8,000 hard words. Mulcaster does not define any of them, but attempts to lay down a standard spelling for them at a time when English lagged universal standardized spellings. मैं स्टैंडर्डाइजेशन पे थोड़ा बात करूंगा। हमारी एक यूनिट है नेट में जिस पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। In one of my other lectures, I was also talking about the standardization of English, how things, what are the institutions which supply or which work as the institutions which प्रोवाइड सर्टन स्टैंडर्ड। एक बहुत ही इजी तरीके से समझा देता हूं। मीरा को पढ़ा है आपने? मैंने अभी 2 दिन पहले एक मीरा का भजन अपने फेसबुक पेज पे डाला, और फिर उसका एक ट्रांसलेशन भी डाला 1 दिन बाद मैंने, और मैंने देखा कि उस मीरा भजन को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कांट ट्रांसलेट, कांट अंडरस्टैंड,
ओके, क्योंकि मीरा आपको पता है मारवाड़ी थी, राजस्थानी थी, फिर वो आपको पता है हरिद्वार भी गई। ओके, तो उसकी राइटिंग पंजाबी, अ, कुछ जगह पर मीरा के भजनों में कूड़ वर्ड आता है। दुनिया कूड़, कूड़ का मतलब झूठ को बोलते हैं, मतलब फॉल्स। इसका मतलब है कि जब हम मीरा पढ़ते हैं तो थोड़ा मल्टीलिंगुअल जब हम होते हैं तभी हमें समझ में आता है कि मीरा कैसे पढ़ी जाए। और जब हम पृथ्वीराज रासो पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि आज पृथ्वीराज रासो को पढ़ने के लिए टीचर अपॉइंट करना पड़ेगा। इट मीन्स आज की हिंदी के अंदर भी आप एक बात कर लीजिए कि अगर हम बॉलीवुड की स्टार्टिंग की अगर कोई हिंदी सुनते हैं, जैसे एक मजाकिया गाना आया था कि क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, ऐसे करके वो गाते हैं। तो आपने कभी पुरानी इंग्लिश कोई पुरानी हिंदी फिल्म देखी है? उसमें ऐसे बोलते हैं चले जाइए, ये नहीं जाएंगे, जाएंगे, ये जाएंगे। आपने कभी नोटिस किया है ज को आ की मात्रा, य को एक की मात्रा? अगर हम आज जाएंगे लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए। सो हाउ दिस ऑर्थोग्राफिक चेंजेस केम? ओरिजिन य ही लिखते हैं, ग्रामेटिकल हिंदी में हम य ही लिखे जाएंगे, बट टुडे वी से, आज कोई ऐसे बोले जाएंगे, ऐसे पाए पहले आए पहले पाए, तो आपको लगेगा ये कोई पुराना आदमी है। तो जब हम चौसर पढ़ते हैं, स्पेंसर पढ़ते हैं, स्पेंसर ने अपने कुछ वर्क्स के अंदर जानबूझ करके आर्केइक स्पेलिंग रखी ताकि लोगों को लगे कि हाँ इसको नॉलेज है। तो बात चल रही है कि मुल्कास्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। मुल्कास्टर वाज द फर्स्ट राइटर जिन्होंने स्पेलिंग चेंज की, और आज हमारे पास जो स्पेलिंग है जिसमें एक्स्ट्रा ई हम नहीं पढ़ते हैं, दैट हालांकि सबने उसको एकदम से फॉलो नहीं किया, बट लेटर ऑन पीपल स्टार्टेड ड्रॉपिंग दैट एक्स्ट्रा ई। आप लोग कैन यू वॉच मी, कैन यू सी मी? हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं वीडियो स्टॉप हो गया हो?